Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. In today's video, we are discussing the paper of law subject December 2023. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So let's move on to the question paper. So here we are discussing only law section. Okay. So question number 51. Malice in law. What is malice in law? It is intentional doing of a wrongful act and improper motive. So it would be 4. अब आप देख लीजिए कि ए का 4 कहाँ पर है. तो ए का 4 देखिए एक में ही है और 1 ही इसका आंसर हो जाएगा. आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, देख सकते हैं, उस कोई बात नहीं है. तो इसमें अगला क्या है? मेलफिसेंस क्या होता है? कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट विच आर एक्शनेबल पर से. इसका हो गया 1. मिसफिशियंस, इट इज इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ लॉफुल एक्ट. ठीक है. नॉनफिशियंस, ओमिशन टू परफॉर्म, मतलब आपने काम नहीं किया. तो 1 ही इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट इज 52. A man's nationality is a continuing legal relationship between the sovereign states on the one hand and the citizen on the other. The fundamental basis of man's nationality is membership of an independent political community. This definition of nationality was given by British Mexican Claims Commission in the case of, which case was this? This was Lynch. 4 is the answer. और अगर पूरा नाम देखेंगे तो इसका था लिंच वर्सेस यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स. जो मैक्सिको है कंट्री, उसका नाम पहले क्या था? यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स. सो 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो कौन कौन से हैं? Right to liberty, equality before law, and so B, C and E, 2 is the answer. Next is 54. Article 163 of the Constitution says that there shall be Council of Minister along with the Chief Minister to aid and advise the Governor in exercise of his functions, except so far he is required by the Constitution to exercise his functions or any of them in his discretion. Under what circumstances Governor can be called to exercise his discretion? Appointment of Chief Minister? Okay, yes. Dismissal of Ministry or dissolution of Assembly? Yes. Submitting report to President for proclamation under Article 356? Yes. Appointment of High Court judges? No. कोई रोल नहीं गवर्नर का अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस में, बिकॉज इट इज डन बाय प्रेसिडेंट. A, B and C, 1 is the answer. आर्टिकल यहाँ बता ही दिया है. नेक्स्ट 55. Arrange the following cases decided by Permanent Court of Arbitration in chronological order. ये मस्कट डॉज केस ये आया था 1905 में. नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज केस ये था 1910 में. वीर सावरकर केस 1911. रशियन इंडेमनिटी केस दैट वाज 1912. आइलैंड ऑफ पाल्मास केस इट वाज 1928 में डिसाइड हुआ था ये. ठीक है. तो क्या बन गया? A, B, C, D, E, 1 is the answer. Permanent Court of Arbitration was founded in 1899. सीट कहाँ है इसकी जरा लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में. Next is 56. Which article in the Constitution of India established National Commission to Schedule Caste? That is Article 338. All knows 2 is the answer. This was easy question. Next is 57. All sums realized by way of penalties under Competition Act are credited to Competition Fund या फिर Consolidated Fund of India. 2 is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? This is mentioned in section 47 of Competition Act 2002. Next is 58. The term contra prolerentum means contradictory contract या फिर standard form contract या फिर limited construction या फिर ambiguity is to be resolved against the party who inserted limiting term. इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी पार्टी ने कोई ambiguity छोड़ दी डॉक्यूमेंट्स में, तो जो इसकी इंटरप्रिटेशन आएगी दैट वुड बी
against the that party who drafted that ambiguity. ठीक है ना, it should be interpreted against the party that drafted it. So 4 इसका आंसर रहेगा. Next is 59. Arrange the chronological order the insertion of the following provision in the IPC. देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर. ये आप एक दो तो गैस कर सकते हो बट सारे नहीं. बट इसमें आपको कैसे गैस कर सकते हो, देखो ए तो चारों में है तो मतलब पहला ए तो सबसे पुराना है. ठीक है, ये आया था 1870 में. फिर 153 ए ऐड हुआ 1898 में. 120 ए 1913. फिर 304 भी 1986. ठीक है, डॉवरी डेथ के जो भी प्रोविजन है, अब ये 304 भी है और 113 भी है एविडेंस एक्ट में. ये कब ऐड हुए थे? 1986 में. तो उससे आप एक गैस कर सकते हैं. तो मान लो आपको ये डी वाला पता है तो डी 2 ऑप्शन हो गई, ये ऑप्शन आपके फिर कट गए. ठीक है, अब जो कॉन्स्पिरेसी का है ये बाद में आया था तो उससे आप भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये बाद का ही है. तो 1 इसका आंसर हो गया. इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट 60. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आईटी एक्ट में कहां पर दिया गया है? दिस इज इन सेक्शन 14. फिर सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस 16 में है. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है 15 में. एंड एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज इन 11. तो क्या बन गया? 1 इज द आंसर. Next 61. Which country does not provide any written constitution guarantee of fundamental freedoms? यूके में है? नहीं है. क्यों? क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो यही आंसर हो गया. थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 62. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय a chairperson who is retired judge of Supreme Court and minister in charge of Department of Consumer Affairs in central government. 2 इज द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 3 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. नेक्स्ट 63. ए मुस्लिम कैन मेक अ bequest of his property without consent of heir to the extent of, कितना कर सकता है वो? 1/3 of his property. वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट 64. अरेंज द फॉलोइंग इन द chronological order of its sequence in the Patents Act. The consequence of secrecy direction, this is provided in section 37. Grant of patent 43. Date of patent 45. Terms of patent 53. Right of patentee 48. तो कैसे हुआ फिर? A, B, C, E, D. 3 is the answer. Next 65. Which of the following provisions in the IT Act prescribes punishment for offences? जो मेन जो पनिशमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं? 66, 65, 67 के अराउंड हैं. ठीक है ना, तो 65 हो गया, 66 डी हो गया, 67 बी हो गया. 52 इज डिलीटेड. 62 इज अपील टू हाई कोर्ट. तो क्या बन गया इसमें? ए बी सी ओनली. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 66. Polluter pay principle is also known as principle of good neighborliness. Principle of good neighborliness क्या कहता है कि इन इंटरनेशनल लॉ स्टेट जैसे कि इंडिया है और पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल रिक्वायर टू रिकंसाइल देयर इंटरेस्ट विद देयर नेबरिंग स्टेट्स. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलाइननेस. बट हमारे यहाँ कोई गुड नेबरलाइननेस नहीं है. फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज दैट? इट मीन्स ऑल आर रेस्पॉन्सिबल. प्रिंसिपल पब्लिक लायबिलिटी, इट इज इन टोर्ट्स, है ना, सब जानते हैं व्हाट इज पब्लिक लायबिलिटी. फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, इट मीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ लाइफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर गुड्स. तो क्या हुआ फिर पोल्यूटर पे का? 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 67. What amongst the following are necessary to constitute a false imprisonment? Total restraint हो जाएगा जी, yes. Detention may be actual or constructive, yes. It should be for a period of 2 years at least. No, there is no requirement for that. Detection or restraint should be unlawful.
यस, बिल्कुल ठीक है, ये फॉल्स है ना यहाँ पर, तो अनलॉफुल ही हो, लॉफुल होगा तो फिर फॉल्स नहीं आएगा। तो क्या बन गया, ए, बी एंड डी, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 68, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमार्क्ड दैट एक्सट्राडिशन विद फॉरेन स्टेट्स इज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस गवर्न्ड बाय ट्रीटीज और अरेंजमेंट्स मेड इन द केस ऑफ, कौन सा केस था ये, इट वाज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीजी मेनन। 3 इज द आंसर। कब आया था ये, इन 1954। ये क्यों बता रहा हूँ, क्या पता कभी नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि ये डेट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वहां पर आपके लिए आ जाए। तो जैसे कि केसेस आते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, मैं हमेशा बताता हूँ कि इसमें ये इनका ये ईयर है। बाकी का आप लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा अभी पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं ये नेट के पेपर में। नेक्स्ट 69, अब मैच करना लिस्ट को, यूएन डेज रिलेटिंग टू आईपीआर एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब आता है, दैट इज ऑन April 26, अभी गया है रिसेंटली। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इट इज ऑन April 23, ये भी अभी रिसेंटली गया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज कमिंग ऑन May 22। फिर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज April 21। तो क्या बन गया इसका, 4123, तो 4123 ये रहा, 2 is the answer. Next is 70. As per NGT Act, environment includes water, air, land, and other interrelationship which exist among and between water, air, and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and what is that? Ecosystem, biodiversity, a property, a climate. Property. 3 is the answer. और डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है, सेक्शन 2C ऑफ एनजीटी एक्ट, डेफिनेशंस में है, एनवायरमेंट डेफिनेशन वहां लिखी हुई है। नेक्स्ट 71, अकॉर्डिंग टू कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023, द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एक्टर्स ओनली या फिर स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स, बोथ। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 72, अब लिस्ट को मैच करना है। पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन का मेंशन किया गया है आईपीसी में इन 384, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इन 393, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट 409। तो क्या बन गया, 3412। सो 3 के ऑप्शन ये है, 3 4 ये रहा, एक ही है, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 73, which of the following statements are correct? In SS Lotus, the Permanent Court of International Justice define international law as principles which are in force between all independent nations. बिल्कुल ठीक है। Professor Dias suggests that international law can never be called a law. No, ये wrong है, ये ऑस्टिन ने कहा था। फिर है सी, लॉर्ड हाल्सबरी व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वंस रिमार्क्ड इट वाज अ मिसनॉमर टू कॉल इंटरनेशनल लॉ एज लॉ, इट शुड बी बेटर डिस्क्राइब अ ब्रांच ऑफ एथिक्स। दिस इज करेक्ट। फिर रसल हैज डिफाइंड इंटरनेशनल लॉ एज द एग्रीगेट ऑफ द रूल्स टू व्हिच द नेशंस हैव एग्रीड टू कन्फर्म टू देयर कंडक्ट टुवर्ड्स वन अनदर, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट ई, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ इज सेट एंड एनफोर्स बाय पॉलिटिकल सोवरेन अथॉरिटी। नो, इंटरनेशनल नहीं है, ऑस्टिन ने कहा था लॉ इज सेट एंड एनफोर्स्ड बाय पॉलिटिकल सोवरेन अथॉरिटी, तो ये हो गया गलत। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए सी एन डी, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 74, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड या फिर कैन नॉट बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट या फिर कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ Constitution. It can be amended even if it is a part of basic structure. There is only one amendment till date, that is 42nd Amendment Act, है ना। उसमें क्या क्या ऐड किया गया था जरा लिखिए कमेंट सेक्शन में, हिंट देता हूँ आपको, एस आई, बताइए क्या है ये, 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट is 75, Constitution of which of the country expressly states that Constitution shall be the supreme law of the land, ये है यूएसए एंड साउथ अफ्रीका, सो ए एंड बी ओनली, 1 इज द आंसर। यूके का तो है नहीं और इंडिया में लिखा नहीं हुआ है, तो ऑप्शन क्या बच गए। तो ये तो मतलब इजी क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से भी करेंगे
इंडिया यूके तो वैसे ही निकल जाएंगे, ए भी बचेगा इसमें, और ऐसा कुछ है नहीं कि भी बी अलोन या फिर ए अलोन, तो आप आंसर लगा सकते हैं इजीली। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 76, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A कैन बी एनफोर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, या फिर कैन बी यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंटरप्रिटेशन, या फिर कैन बी अमेंडेड बाय द स्टेट, या फिर हैज बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली वंस। कैन बी एनफोर्स्ड नो, यूज्ड यस, स्टेट अमेंड कर सकती है नो, और वंस अमेंडेड यस। कब अमेंड किया गया? 51A जो है कब ऐड किया गया था? बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एंड देयर वाज अमेंडमेंट ऑफ 86th अमेंडमेंट, जहां पर एक 11th ड्यूटी ऐड की गई थी के। अर्लियर देयर वर ओरिजिनल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। 51A के जो है वो ऐड किया गया बाय 86th अमेंडमेंट, तो ये 11 हो गई फिर, ठीक है ना। तो इसमें बी एंड डी आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। Next is 77. To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for their living creatures, is provided in which part of the Constitution? What is this? This is a fundamental duty. 2 is the answer. 51A G. Clause G, ये है fundamental duty. Next 78. A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C. This contract can be enforced by law only when C dies during lifetime, या फिर A dies in lifetime of C. When C dies in lifetime of A. So 1 is the answer. And this is section 32 of Contract Act, and this is illustration A in that section. 79. What amongst the following unnecessary characteristics for libel? It is defamation of permanent form. Yes, this is correct. The burden of proof that the words are false lie upon the plaintiff. No, that would lie on the defendant. No actual damage need to be proved. This is correct. Falsity of charge is presumed in the favor of plaintiff. This is also correct. So A, C, D are correct. 4 is the answer. Libel is a part of defamation. There are two types of defamation, libel and slander, है ना। नेक्स्ट इज 80। अब स्केड्यूल्स बताने हैं आपको, मैच करना है लिस्ट को। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है? फिफ्थ शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सो 3 बन जाएगा इसका। 8 आपको पता ही लैंग्वेजेस है। 10th क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन। 4th ही बच गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स। क्या बन गया इसका? 3124, 3124, दिस इज हियर। एंड एनीवेज मान लो आपको 8 शेड्यूल पता है कि लैंग्वेजेस का 8th है, तो बी का 1 देख लीजिए। बी का 1 जो है एक में ही है। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 81। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट असाइसेस हैज एसेंशियली डेवलप्ड as a result of progress made in law reporting. Since the law in India is mostly based on English law, the system of law reporting is fairly developed in India. This is also correct. Both are correct. 1 is the answer. Next 82. The right of private defense extend to causing death under which provision of IPC? Under section 100 and 103. 2 is the answer. Very easy question. Next 83. With respect to which of the following kind of IPR there exists a statutory ban for assignment? पेटेंट में कर सकते हैं यस, ट्रेडमार्क में यस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो एक पर्टिकुलर एरिया के उसको सामान को दी जाती है ना, तो वो असाइन कैसे करेंगे? वो असाइन नहीं कर सकते। लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते फिर? 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 84। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ ऑनरशिप, द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑनरशिप आर इनडेफिनेट यूज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। प्लेनरी कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट, नो। अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, ये बिल्कुल ठीक है। बंडल ऑफ राइट्स, नॉट नेसेसरी। अनलिमिटेड ड्यूरेशन, यस। नेक्स्ट 85। अरेंज फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस ऑफ द ईयर दे वर डिसाइडेड। तो ये कंपनी लॉ के केसेस हैं। सबसे पहले केस कौन सा आया था? सबसे पुराना केस बताइए इसमें कौन सा है? तो एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, ये आया था इन 1875। फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड, दिस इज 1856। मोहरी भी धर्मदास घोष 1903।
सब जानते हैं ये तो। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस सिटी ऑफ विशाखापट्टनम 1963। सालोमन 1897। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ? रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला है ना। तो BAE, तो BAE यहीं पर है, देखो ये रहा 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 86, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट स्पिंडल रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय फुल हाफ यूट्राइन यस, अडॉप्शन यस, लेजिटिमेट यस, फोस्टेज नहीं होता, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशंस यस। तो क्या बन गया? A, B, C and E. 2 is the answer. Next is 87. Which of the following are characteristics of government promissory note? It is a promise of President of India or Governor of State. This is correct. It is regulated by the Indian Securities Act. This is also correct. They are not negotiable instruments. No. They are negotiable instruments. So this is wrong. They can assign without endorsement. No, it cannot be assigned without endorsement. So this is also wrong. A and B only. 1 is the answer. Next is 88. Non-obstante clause in section 145 of Negotiable Instrument Act provides for which of the following? Dispense with the procedure under section 200 CRPC. This is correct. Procedure for examination of complainant witness on oath is done away. Yes. Affidavit of complainant and witness can be accepted. Yes, this is correct. Sworn statements recording by the magistrate is dispensed with. This is also correct. So A, B, C, D. 4 is the answer. Next is 89. A Hindu male having a Hindu wife changed his religion and adopts Islam in 2012. He marries again to Muslim girl in 2013. In 2014, his Hindu wife died. His second marriage is, और देखिए वो चाहे बाद में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्जन के बाद दूसरा शादी कर लेगा. दैट वुड बी अ बाइगैमी. वैलिड होगी नो, वैलिड नो एज वाइफ डाइड नो, void as he has not taken consent of no, void as his second marriage amounts to bigamy. 4 is the answer. शादी कब की है? 2013 में. उस टाइम तो बाइगैमी हो गई ना. जो उसकी पहली फर्स्ट हिंदू वाइफ थी उसकी डेथ हुई है 2014 में. डजंट मैटर. 4 इज द आंसर. केस कौन सा आता है इसमें? सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज 90. अब मैच करना है, इनेक्टमेंट्स हैं, बताने हैं कौन से ईयर में आए ये. Civil Rights Act that came in 1955, Probation of Offender Act 1958, Immoral Traffic and Prevention Act 1956, Medical Termination of Pregnancy Act 1971. तो क्या बन गया? A का 1, D का 4. ये रहा 3 is the answer. Next is 91. The Nuremberg trial classified the crime punishable under international law into the categories of कौन कौन से थे? Crimes against peace, war crimes and crime against humanity. 3 थे ये. So C, D and E only. 3 is the answer. Next is 92. Article 19 of the Constitution is automatically suspended if proclamation of emergency is declared on the ground of war or external aggression. Armed rebellion को हटा दिया गया है ना. Armed rebellion की जगह क्या कर दिया गया? Internal disturbance. So A and B are correct. So 1 is the answer. Failure of constitution machinery, तो उस पर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है. और ये कहाँ मेंशन किए गए हैं ये इसके बारे में कि भाई जहाँ सस्पेंड होगा ये? दैट इज इन आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज 93. Arrange the following cases relating to advice direction of the Supreme Court to the state to enact a uniform civil code in the chronological order of their pronouncements. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, केस ऑन मेंटेनेंस है ना. बहुत ही फेमस केस है ये. कब आया था? कौन सी ईयर में? दिस केम इन अप्रैल 1985. ओके. सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995. ABC वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, that is in 2015. Jordan Dingday versus SS Chopra in May 1985. John Vellemadden versus Union of India, that is in 2003. सबसे रिसेंट वाला कौन सा है फिर इसमें? C, ABC वाला. तो देखो 2 ऑप्शन है C के. सबसे पुराना कौन सा हुआ फिर? 85 वाला. बट अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बड़ा क्लोज कर दिया.
मोहम्मद अहमद खान और ये जॉर्डन लिंगडे ना 1 महीने का ही फ़र्क है ना। तो ए इसमें पहले आएगा, अप्रैल वाला है तो 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 94। Arrange the following UN convention in their chronological order. UN Convention on Biological Diversity, this came in 1992. On climate change 1992 again. Convention against transnational organized crime है ये, this came in year 2000. Right of child 1989. UN Convention on jurisdictional immunities of states and their property, this is 2004. इस क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज दे आर टू सिमिलर ऑप्शंस एंड यहाँ पर ये ऑप्शन भी इन्होंने ठीक नहीं बनाया। डी वाला देखिए, डी सबसे पहले आया था तो डी यहाँ आ गया, उसके बाद फिर इन्होंने बी लगाया है, फिर सी लगा दिया। सी कैसे आएगा, सी 2000 है और ये फिर ई लगा दिया, उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज वाला कर दिया। सो द ऑप्शन वाज आल्सो रॉन्ग, दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द आंसर की। नेक्स्ट 95। The term preferred by Bentham to explain his imperative concept of law is mandate. 2 is the answer. Simple one liner questions है इनके, अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, there is no point to guessing. Next 96. In which country the appointment of judges are made through the parliament? कहाँ होती है? In UK. 1 is the answer. इंडिया में नहीं होती, तो all of the above इसमें ऑप्शन बनेगा नहीं। बाकी यूएस और यूके में कन्फ्यूजन हो तो यूके में भी पार्लियामेंट नहीं करती है ना। नेक्स्ट 97। विच काइंड ऑफ पेटेंट इज प्रोटेक्टेबल इन इंडिया? डिजाइन पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट या फिर प्रोसेस पेटेंट? इट इज प्रोसेस पेटेंट। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स इज रिलेटिंग टू पेटेंट्स? बुडापेस्ट ट्रीटी 1977। 1 is the answer. Madrid agreement क्या है ये? This is about the registration of marks. Bern Convention 1886. This was on protection of literary and artistic work. Washington Treaty 1989. This is on integrated circuits. 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 99। अब मैच करना है। गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई, किस पर है ये? ऑन गार्जियनशिप ऑफ माइनर चाइल्ड की इवन विदाउट फादर इन द लाइफ टाइम ऑफ फादर मदर कैन बी नेचुरल गार्जियन, है ना। सरला मुद्गल अभी बताया था मैंने, दैट इज ऑन वैलिडिटी ऑफ सेकंड मैरिज ऑफ हिंदू आफ्टर हिज कन्वर्शन टू इस्लाम। डैनियल लतीफी मेंटेनेंस पर है ऑब्वियसली। सीमा अश्वनी किस पर है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो क्या बन गया? 2413। द 2413 is here. 1 is the answer. Next is 100. Which among the following country do not follow the scheme of distribution of power? कहाँ नहीं है? यूके में नहीं है। 3 is the answer. Next is 101. Arrange the names of the following jurists in the term of chronological order of their birth. अब बताइए, इनका बर्थडे बताना है। जेरमी बंथम, इनका बर्थ हुआ था 15 फरवरी 1748। जॉन ऑस्टिन 3rd of March 1790। सर हेनरी मेन 15th August 1822। हांस कैल्सन 11th October 1881। इमैनुअल कैंट 22nd of April 1724। कोई डेट कॉमन है इसमें? नहीं है। तो सबसे पहले कौन आया फिर? तो सबसे एल्डर कौन हुआ? 1724, इमैनुअल कैंट। ई का देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक ही है, फिर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 102। assertions and reasons. Assertion है ट्रेड सीक्रेट एक्ट 2020 is legislation enacted in India to provide for confidential information and trade secrets. नो, ये जो है यूएसए में पास किया गया, इंडिया में नहीं किया गया, तो ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। इंडिया हैज enacted number of legislation to create legal framework on intellectual property rights. ये करेक्ट है, तो A is not correct, R is correct, 4 is the answer. Next is 103. A is lawfully arrested by Z, who is a police officer. A loses his self-control by grave and sudden provocation due to arrest and kill Z. A shall be punished under. वो लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है राइट को, तो फिर वहां पर कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है,
और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी नहीं होगा, ऑब्वियसली दैट शुड बी रीजनेबल। तो लॉफुल चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता, तो क्या हो गया, ये मर्डर हो गया ना, तो 302 में आ जाएगा। फिर सेक्शन 302 आईपीसी पनिशमेंट मिलेगी 302 के अकॉर्डिंग, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 104, विच अमंग द फॉलोइंग मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन? महबूब शाह वर्सेस एम्परर, यस करेक्ट है। वीरेंद्र कुमार घोष में किया गया था, नो, इट इज ओनली ऑन कॉमन इंटेंशन। अब देखिए, अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? देखिए ए और बी दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके बनते हैं, बिकॉज फिर बी और सी दो में ए तो है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। बी वाला है नहीं, तो बच गया एक, 2 इज द आंसर। अब एक बात देखिए, यहाँ पर जो इनके ईयर लिखे हुए हैं 1945, 25, तो ये जरा याद कर लीजिएगा, क्या पता नेक्स्ट वाला एग्जाम में जो आने वाला है उसमें ये आपसे पूछ लें। Next is 105. Which one of the following is not a ground for divorce under Section 13 of Hindu Marriage Act? Respondent is convicted for committing an offence. It is not a ground. Respondent has renounced the world. ये है. Has ceased to be a Hindu by conversion. Yes, ये भी है. Has not been heard alive for 7 years. ये भी है. तो कौन सा नहीं है? 1 नहीं है. तो 1 is the answer. Next is 106. Consider the following statement relating to death penalty. डेथ सेंटेंस फॉलो डेटर्स थ्योरी, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिमूव डेथ सेंटेंस, नो, ये कहीं भी कोई इसकी न्यूज नहीं है। रिसेंट अमेंडमेंट्स इन आईपीसी एंड अदर प्रपोजल्स हैव एडेड न्यू ऑफेंसेस विद डेथ सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है ये। द पार्लियामेंट वांट्स हार्श पनिशमेंट फॉर हीनियस क्राइम्स थ्रू कैपिटल पनिशमेंट, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डॉक्ट्राइन द नंबर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज रिड्यूस्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो ए, सी, डी एंड ई आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। Next is 107. Which among the following provisions of Constitution of India mandates criminalization of prohibited conduct? Prohibited conduct कौन सा है? Article 17 untouchability वाला and 23 prohibition of trafficking of human being and forced labor. तो दो हो गया 17 and 23. 3 is the answer. Next is 108. Article 28 of the Constitution mentions 4 types of educational institution given below. In which of the following institution religious instructions can be imparted with the consent of individual or otherwise? Institution wholly maintained by state, क्या वहाँ पर religious instruction impart कर सकते हैं? नहीं कर सकते। Recognized by state, वहाँ कर सकते हैं। Received aid out of state fund, हो सकता है। Institution that are administered by the state but established under any trust or endowment, वहाँ हो सकता है। आर्टिकल में लिखा हुआ है नॉट होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, सो आंसर क्या रहेगा इसमें? बी, सी एंड डी। नेक्स्ट 109. विच अमंग द फॉलोइंग फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दोनों में है। यूके में है बट यहाँ ऑप्शन में नहीं बन रहा, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक रहेगा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 110. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज द प्रोस्पेक्टस इशूड prior to the issue of prospectus, बिल्कुल ठीक है ये। after the issue, no, the consent of shareholder, no, 1 is the answer. This is related to Companies Act. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111. अब मैच करना है केसेस को प्रिंसिपल से। तो लिंक लेटर वर्सेस वॉकर, इस केस से कौन सा प्रिंसिपल आया था? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। Jolly George Verghese versus Bank of Cochin, that is importation of provision of ICCPR into Indian Constitution. What is ICCPR? ICCPR is International Convention on Civil and Political Rights. Okay. फिर ये राइट टू रजिस्टर नन ऑफ द अबव वोट, तो जो वोटिंग में ऑप्शन आते हैं ना भाई, आपने किसी कोई वोट नहीं करना, पर तभी कोई भी कैंडिडेट जो है वो लायक नहीं है, तो क्या होगा? तो आप जो है नन ऑफ द अबव जो बटन ऑप्शन दबा सकते हैं। तो ये आया था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से। तो क्या बन गया इसका? 4132। तो 4132 ये रहा, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 112. A1 and A2 plan to commit robbery. The mere agreement to commit this offence is punishable under which section? Obviously conspiracy है ये, तो punishable कहाँ होगा? Conspiracy में 1 is the answer.
Next is under 13. When an absolute right is violated, the law conclusively presumes damage, although the person wronged may have suffered no pecuniary loss. This was decided in which case? तो ये क्या था? This was ubi just ibi remedium, where there is right there is remedy. तो राइट सफर हुआ तो आप जो है रेमेडी ले सकते हैं, चाहे पेक्यूनियरी लॉस हुआ हो या ना हुआ हो. तो केस वाज एशी वर्सेस वाइट. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 114. डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिशन एक्ट से. तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन रेलिवेंट इंटरनेशनल मार्केट, क्या वो देखेंगे? नो. इंटरनेशनल मार्केट क्यों देखना हमारे? कॉम्पिटिशन एक्ट इंडिया में अप्लीकेबल है. तो एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट फोर्सेज इन इंडिया, येस. अफेक्टिंग कंपटीशन ऑफ कंज्यूमर रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया, येस. पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इंजॉयड इन रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया, येस. तो क्या हो गया? तो बी सी डी. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ट्रिक क्या करी है, सी यहाँ पहले लगा दिया, फिर डी, फिर बी लगा दिया. तो बी सी डी नहीं लिखा, सी डी बी लिख दिया. बात एक ही है. तो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 115. assertion. Meher, dower is a sum of money which the Muslim husband agreed to pay to wife as a mark of respect for agreeing to marry him. Since Muslim marriage is a contract, it is necessary to that dower must be specified at time of marriage, and it is not specified, it can be presumed. This is correct. फिर है if not paid earlier, meher become due on death of husband or dissolution of marriage by divorce. बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत करेक्ट हो गए. तो एंड इसके एक्सप्लेनेशन हो गई. तो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 116. In respect of which of the following items India does not have legislation to specifically cover them as intellectual property? ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए है? नहीं है. स्ट्रीट आर्ट के लिए नहीं है. पब्लिसिटी राइट नहीं है. सेलिब्रिटी राइट नहीं है. कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए तो है. तो कॉपीराइट एक्ट है ना, उसमें कवर हो जाता है ये. ठीक है. ABCD वाले नहीं है. तो 3 इज द आंसर. Next is 117. As per the provision of Hindu Adoption and Maintenance Act, a bachelor male adopts a child. He subsequently marries a woman. Such woman shall be, तो वो क्या बन जाएगी? Be the adoptive mother बनेगी या फिर step mother of the adopted child. देखिए पहले अडॉप्ट किया, बाद में जो है मैरिज की है, तो फिर वो स्टेप मदर कहलाएगी. 2 इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? दिस इज मेंशन इन सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में. नेक्स्ट 118. मेंस रिया डज नॉट इंक्लूड इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव. यस. मोटिव नहीं होता, मोटिव इज नॉट देयर. सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 119. Assertion and reason. Highly developed legal systems strive to create an autonomous apparatus of legal concept, legal techniques and legal norms. This is correct. And its reason है law needs to be endowed with logical consistency, predictability and stability. ये बिल्कुल correct है. तो explanation हो गई इसकी. 1 is the answer. Next is 120. As per the Partnership Act, partnership is defined under which section? तो बहुत ही common question है. Section 4. 4 is the answer. Next 121. Consider the following statement. Fundamental rights are expressly provided in the US Constitution. बिल्कुल ठीक है. फिर restriction on fundamental rights are expressly provided in US Constitution. No, ये नहीं है. Fundamental rights and human rights are same in India. No, नहीं है. Directive principles in India are not enforceable by courts. बिल्कुल ठीक है. तो A and D are correct. 2 is the answer. Next is 122. A human being ceases to be a person in law as in fact on being adjudged as an insolvent. No, यहाँ पर as लिखना चाहिए. On renunciation of citizenship. No. On conviction. No. At death. Yes. 4 is the answer. डेथ के बाद ही तो वो सीज करेगा ह्यूमन बीइंग. ऐसे 123. अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस ऑफ देयर ईयर ऑफ वर्डिक्ट. देखिए मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने वीडियो बनाई है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन सी दिस क्वेश्चन ओवर देयर. इट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स. केशवानंद भारती केस, इट केम इन ईयर 1973. शंकरी प्रसाद 1951. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. सज्जन सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान 1964. तो क्या बन गया? BDCA. BDCA. 1 is the answer. This is a repeat question. Next is 124.
Which of the following statement in relation to the dissenting judgment of Dr. Radha Vinod Pal in the Tokyo trial can be correctly attributed to him? War is beyond the scope of international law. This is correct. Conduct of war is within the scope of the rules of international law. This is correct. Act of Paris brought about no change in the status of war. This is also correct. International law has developed so much so as to make war a crime. No, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है. Conspiracy is an independent crime under international law. No. So A, B, C are correct. One is the answer. देखिए जो ये टोक्यो ट्रायल है इस पर एक मूवी भी बनी हुई है. इवन न्यूरमबर्ग ट्रायल पर भी मूवी बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं उसको. नेटफ्लिक्स पर है ये एंड इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द टोक्यो ट्रायल, क्या हुआ था, कौन कौन जजेस थे उसमें, इंडियन जज वहाँ पर कैसे पहुँचे, है ना. नेक्स्ट इज 125. मैच करना है कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है ये. प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी होती है? दैट इज फॉर्म टू कन्वर्ट कोऑपरेटिव इनटू अ कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी इज डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर MOA. सेक्शन 8 कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. स्मॉल कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 50 से और 5 करोड़ हो एंड टर्नओवर 2 करोड़ टू 20 करोड़ हो. तो क्या बन गया? 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 126. There is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority. This was held so in the case of, कौन से केस में बोला गया था ये था लूथर वर्सेस सेगर में. 2 is the answer. Next 127. American realist Judge Jerome Frank described his own attitude towards realism as one of decisive cynicism या फिर constructive skepticism. 2 is the answer. Next is 128. Arrange the following cases in sequence in which they decided. अब ये ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस कब आया था? This is the one of the oldest cases in English law. It came in 1410. Donovan versus Stevenson 1932. Ashe versus White 1703. Drennan versus Fletcher 1868. तो फिर क्या बन गया इसका? तो बन गया इसका ACDB. और देखिए अगर आपको ये ग्लॉसेस्टर पता है तो आप पूरा केस आराम से कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये पता है कि डोनोवन स्टीवनसन है वो 1932 का, तो भी आप एक आराम से इसको बना सकते हैं. बिकॉज पहले देखिए एक का एक ही है और आखिर में बी फिर एक ही है, तो 1 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट इज 129. कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी. दिस इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? दिस इज सेक्शन 185 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. 1 इज द आंसर. Next is 130. The General Assembly of UN passed the Uniting for Peace resolution on, कब पास हुआ था ये? On November 3, 1954 is the answer. उसको क्या बोलते हैं? This is resolution number 377-5. क्यों बता रहा हूँ? हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पूछ लें ये. Next is 131. Which of the following statement given below are correct? A wrong is an act contrary to the rule of rights and justice. ये बिल्कुल ठीक है. फिर immoral and natural wrong is an act which is morally and naturally wrong being contrary to rule of natural justice. बिल्कुल ठीक है. Illegal wrong is an act which is legally wrong being contrary to the rule of legal justice and violation of the law. This is correct. A legal wrong is always a moral wrong. No, ये wrong है. Moral wrong is always legal wrong. ये wrong है. तो natural and legal wrongs cannot form intersecting circles कर सकते हैं वो. तो 1 इसका आंसर रहेगा. A, B, C are correct. Next is 132. Arrange the following in chronological order of their enactment. भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? 1993 में. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 में. 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिससे कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है इस्टेब्लिश किया गया था in 2003. फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992. तो ओल्डेस्ट कौन सा हुआ? नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट. तो बी पहले आ गया. देखिए बी एक में ही है तो 4 इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 133. असर्शन रीजंस. असर्शन है The test of proportionality, necessity and balancing are found at prominent places in the GATT as well as the SPS and TBT agreements. अब GATS क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज. गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड
टैरिफ। SPS क्या है? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट। TBT क्या है? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो ये करेक्ट है। रीजन है द मीनिंग ऑफ दिस टेस्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज क्लियर। ये जो है करेक्ट तो है बट इसकी वो रीजन नहीं बन गया, तो 2 इसका आंसर रहेगा, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Next 134. Section 7 of Hindu Marriage Act provides that a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. Consider the following situation and decide in which case a marriage is validly solemnized. At the time of marriage, all essential strict ceremonies are performed. क्या essential है ये? Yes. At the time of marriage, all customary rites and ceremonies of bride family are performed. ये ठीक है। हाफ ऑफ ब्राइड हाफ ऑफ ब्राइड ग्रुप, नो में लिखा हुआ है आइदर ऑफ एनी पार्टी, तो एक ही के होंगे फिर वो। फिर ब्राइड ग्रुप डिसाइडेड टू परफॉर्म सिंपल सेरेमनी एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, नो। फिर ये स्टार्टेड लिविंग टुगेदर हस्बैंड वाइफ विदाउट परफॉर्मिंग एनी सेरेमनी, तो ए एंड बी आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 135. The following article in the Constitution deal with protection of environment and or places. तो 51A जी पहले पूछ लिया है इस पेपर में ही, ठीक है ना। 48A जो है दिस इज ऑल्सो फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, एंड आर्टिकल 49 एज वेल, दिस इज फॉर द प्लेसेस। सो क्या आंसर बन गया इसका? A, C and E, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 136. मोरल राइट इज अ कंसेप्ट प्रिवेलिंग इन इंडस्ट्रियल डिजाइन या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। मोरल राइट कहाँ होता है? कॉपीराइट में, 4 इज द आंसर। Next 137. Solomon distinguishes between possession in fact and possession in law. He treated possession in fact as a fallacy, fiction, or conception. As a conception, 3 is the answer. Next 138. Which among the following expressly contains a provision for right to bear arms as a fundamental right? क्या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है? नो। अमेंडमेंट 2 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। 108 अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, नो। ह्यूमन राइट एक्ट यूके, नो। तो बी ही आंसर रहेगा, ओनली बी, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 139. अब मैच करना केसेस को और उनके ईयर को। हुस्नैरा खातून आया था कब? 1979 में। कदरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आया था 80 में। MS हस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस केस केम इन 1978। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 81। तो क्या बन गया इसका? 3241, so 4 is the answer. Next 140. In which of the following cases it has been held that a doctrine of basic feature does not constitute a limitation on the legislature while enacting ordinary legislation? This was held in case of Indira Gandhi versus Raj Narayan, 1 is the answer. अब आ गए ये पैराग्राफ, तो पैसेज है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और रीड कर लीजिए। आई एम डूइंग द क्वेश्चंस ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 141 सेज विच इज डिस्टिंग्विश्ड एज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको बोला था इसमें? इसको बोला था फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोनों को, तो 4 इसका आंसर रहेगा। फिर से वही पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 142. Which of the following is a part of the basic feature of the constitution? Fundamental duties, directive principles, या फिर political process decision making, या फिर harmony of balance between part 3 and part 4, that is fundamental right and DPSP. तो 4 इसका आंसर रहेगा। Question number 143. The notion that every citizen must do his duty towards the nation as well as the fellow citizen is incorporated in the Indian Constitution in कौन से पार्ट में है? दैट इज इन पार्ट 4A, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटी की बात की है ना यहाँ पर, देखिए 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144. द प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 32 इज कन्फाइंड इन इंडिया टू फंडामेंटल राइट्स या फिर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, राइट टू वोट। फंडामेंटल राइट्स, 1 इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन ऐसे है ना, आप बिना पैसेज को रीड करे इसको आंसर कर सकते हैं अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट 145. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कसेस द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फ्रेम
and its framers as to which kind of society they aspire to establish in the country. It is part 3, part 4 again, fundamental rights and DPSP. 2 is the answer. अब ये सेकंड पैराग्राफ आ गया, ये देखिए क्या है. दिस इज द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स इन्वॉल्व इन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर. तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए. क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है? व्हाट डज द ऑथर कंसिडर टू बी डॉक्ट्राइन यूज्ड टू सर्कमस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज डॉक्ट्राइन of spirit of the constitution and natural law. 1 is the answer. Next 147. Which of the following options reflect the opinion of the author as can be discerned from the cited paragraph? A critical and negative view of the way the court uses the doctrine of spirit of the constitution and natural law to circumscribe the constitution itself. देखिए 146 का आंसर कहाँ दे दिया गया? 147 में लिखा हुआ क्या? लिखा हुआ यहाँ पर 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 148. While determining the validity of an ordinary law, what can the court look into? The court cannot look into the express provisions of constitution, cannot look into the necessary implications, या फिर can only look into express provisions of constitution or necessary implications thereof. 3 is the answer. Next 149. What does the author identify as the greatest paradox involved in the doctrine of basic feature? क्या है greatest paradox? The doctrine does not constitute limitation on legislature while enacting ordinary legislation, but operates as limitation on the constituent body, though the constituent body is sovereign authority while the legislature is not. 4 is the answer. बिल्कुल ठीक है ये. Next 150. As per the apprehension of the author, when may a court travel beyond the express provision of the constitution to invoke some principle superior to the express provisions while exercising the judicial power to interpret the constitution, या फिर when the court wants to assert power of judicial review, या फिर when the validity of constituent amendment act is challenged? 3 is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of UGC NET Law subject December 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.